भाई इधर, रोहित भाई आपका भाई इधर। मैं डायरेक्ट बोला मेरे बंदे को क्यों मारा, भाई यहाँ पर देखो। तो लेकिन भाई इधर देखो। भोजपुरी फिल्म एक्टर। हाँ? थैंक यू। मैम लुक हियर। मैम लेफ्ट अपना। मैम इधर जो चेयर। यस हो गया। लुक हियर सर। थैंक यू। अब 26 के तैयार हो रहे हैं। I think my character, Vedai's character, which because I've done that, I've been there before. So now I want to do something which is really performance oriented and which I really enjoy playing. So I couldn't really hope for a better break than this. मेरे लिए, I think you were talking about the story of the film. I guess the highlight point would be when Chintan comes back in her life and makes her realize that what are you doing? You're living a lie. So try to break free, come out of it, and live your own life. My ideology when it comes to women is, first of all, I believe in one thing, that live and let live. Man or woman doesn't matter. But I have always been very independent, very strong-headed, and my family has always supported me. So I just hope that whoever wants to do whatever, do that, and I hope that their family also supports them the way mine did. Done? Thank you. चाहूँगी कि ये फिल्म जो है ये योगेश जी ने बनाई है, योगेश जी ने डायरेक्ट की है। सो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि उन्होंने ये फिल्म बनाई। और इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो एक मैच्योर लव स्टोरी है और शिमला की कहानी है, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं उसमें एक बहुत ही पीसफुल महसूस कराने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और ऐसी फिल्में जो हैं अभी मुझे लगता है कि अभी कॉमेडी और लव स्टोरीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जैसी दिमागी हालत है वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है वो हंसेंगे और खुश होंगे तो ठीक हो जाएंगे। सो ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसके अंदर रोमांस हो, कॉमेडी हो, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बननी चाहिए। तो इसके अंदर एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो गौरी प्रधान है और हितेन तेजवानी है, हितेन जी के साथ में मैंने अभी लास्ट एक फिल्म जो है अजय वर्धन, उसके अंदर मैंने उनके साथ काम किया था। और सॉरी शतरंज में किया था, एक सॉन्ग किया था मैंने अक्कड़ बक्कड़। और उसके बाद में ये जो फिल्म है इसमें गौरी प्रधान जो सीरियल में काम करती थी, पहले मैं उनका सीरियल देखती थी और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे आज उन्हें देखने का मौका मिला, उन्हें मिलने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी। और मैं आई विश कि उनकी फिल्म सुपर हिट हो और वो तरक्की करते रहें। आई एम जस्ट हियर टू प्रमोट गौरी प्रधान्स मूवी and best of wishes, best of luck everyone.
थैंक यू। Yeah, I'm very happy. It's a dream fulfillment for me. Excitement level is normal because at my age I can't get excited about things, but I'm deeply satisfied. Very happy that this day has come. A lot of people in my team, my actors, they've all worked very hard, and I'm sure it's a day of celebration for them. Yes. You see, I wanted to bring out the concept of what we call as classic love. Classic love is an idea very different from what and how we look about love now in the present generation. Classic love has elements of separation, elements of sacrifice, elements of... The basic idea is that प्यार हुआ तो मतलब मैं आपको सब समर्पित है, आपसे कुछ हासिल नहीं करना है. There are no claims in love. There is only a desire to give the best to the other person so that the other person can flourish and enjoy and be happy. It's not what you want from the person, what you want to give to the person. तो ये classical concept of love in the modern times is getting lost. तो उस तरह का एक संदर्भ बनाने की कोशिश करिए. It has come out beautifully. The story is shortly we're going to watch it. I don't want to. सर्विस करते हैं एंड उसके बाद में आपको मतलब जो आपको बैक में काम थोड़ा है एंड उसके बाद में आपने अपना सब जितना भी आपकी अर्निंग सेविंग्स सब आप देख रहे हैं. हाँ, वो तो देखिए, when you want to do something then you have to put your best, and for best is your time, your money, your wealth. मुझे काम करना था और पूरी लगन से किया. बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया इसमें, एंड it's been a project of passion and nothing else. तो हमने जितनी भी पूरी टीम थी सबने आगे बढ़ के बहुत क्रिएटिवली काम किया, और उसका रीज़न ये भी था कि मैं एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर I was not so hands-on. I let all people, all the technical as well as the actors, complete freedom to explore their art, and what comes out is very magical. I'm sure you will, after you have seen it, you will agree with me that it's a very different story than, or a different type of movie. It's more of a counter trend. मध्यम चलने वाली फिल्म है, लेकिन कहानी फिर भी बहुत एनग्रॉसिंग है. एक सेकेंड भी आपका दिमाग कहानी से पलट नहीं सकता. बट एक सहज पिक्चर है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा I mean, our today generation films are full of thrill, excitement. So this is not high octane drama. This is very subtle drama. फिल्मों में किया है, लेकिन ये विंटर टेल एट शिमला हमारे योगेश सर ने जो फिल्म बनाई है, इतने अपने पूरे जीवन में जितना इन्होंने काम किया, जो पैसा इन्होंने कमाया, वो सारा इस मूवी प्रोजेक्ट में लगा दिया है. योगेश जी की हिम्मत है कि जॉब पूरा करने के बाद ये फिल्म के लिए सोचा, बनाई, रिलीज़ किया, और आज पीवीआर हम सब लोग उठे हैं. मुझे वो दिन याद है जब हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे, तो सर ने ऐसा कोई भी नहीं था क्रू या एक्टर जिनको किसी भी तरह की कोई शिकायत हुई थी. बहुत ही भले इंसान और बहुत ही तबीयत से इन्होंने मन से काम किया प्रोजेक्ट पे, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, ऑडियंस इसको पसंद करेगी और लोग आएंगे देखने के लिए. अब आप लोगों का सहयोग चाहिए, और ऑडियंस से दुआ करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आएँ, हमारी ये फिल्म को देखें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Right from the beginning, if you see what project she's done, she's always been very choosy. And because क्या है कि उसको easy है, मतलब in the sense not in a bad way, but because I am doing multiple subjects and everything, she has that thing to choose
एंड शी चूजेस व्हाट शी लाइक्स। दिस ये स्क्रिप्ट आई योगेश जी की, उसे पसंद आई, उसने मेरे साथ डिस्कस किया, बोला देखो ये मुझे अच्छा लगा। बोला अच्छा लगा तो 2 बार सोचना मत, डोंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस ऑल्सो, गो फॉर इट। इस फिल्म की जर्नी पूरी मुझे पता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो एवरी डे व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हाउ दे वर शूटिंग एंड क्या क्या हो रहा था वो सब पता है। ऑल इन ऑल गुड पार्ट इज दैट शी वाज टेकन केयर ऑफ एंड शी हैड अ ब्लास्ट, शी enjoyed while shooting, so that is all what it matters, you know. You have to work also and then you have to enjoy. It was like a family over there. She said बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, shooting is on time, everything is happening on time and we'll wrap up also on time, so it is perfect. Everything is scheduled, everything is planned, so Yogi ji took care of her. Thank you, sir. Thank you. I have seen in bits and pieces. I will not lie to you. But now I was saving it for the last. इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि आज सबके साथ देखूंगा, बिकॉज अगर मैंने पहले देख ली होती तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा तो कम होता, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स कि आप जितनी बार देखते हो आपका इंटरेस्ट। तो आज मुझे पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे सब लोग के साथ एंजॉय कर लिया। दैट्स व्हाई आई सेड कि चलो आज तो देखेंगे। वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैंने इनको भी बोला, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। म्यूज़िक लॉन्च पे बहुत कुछ देखा, उसके अलावा घर में बहुत कुछ इन्होंने दिखाया हमें, सब कुछ फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, इट इज़ डिफरेंट। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट व्हेन एवरीबडी वॉच इट दे विल कम टू नो व्हाई इज इट कॉल्ड डिफरेंट। यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए गौरी की फिल्म ज़रूर देखिए। शी हैज़ यू नो शी इज़ डूइंग दिस फिल्म, डेब्यू है एक तरह से, तो शी इज़ डन इट एंड देखिए। गौरी के लिए हमने अपनी फिल्म पोस्टपोन की है, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा आप। Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय, हेलो, नमस्कार। Ma'am, if you don't mind, I request you to just be a little louder because there's so much noise. Can't hear what you're saying. Yeah. Well, Yogesh ji has made the film. इन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत है एंड इट्स एक्चुअली अ लव स्टोरी। चिंतन और वैदेही की प्रेम कथा है और उसमें मैं शामिल हूँ क्योंकि मैं किरदार निभा रहा हूँ जो कि नवीन शेरगिल है, जो कि चिंतन का बहुत ही अजीज़, बहुत ही सगा मित्र है और वो भी उसकी तरह काफ़ी एजुकेटेड है और शिमला इज़ हिज प्लेस। सो मेरी वजह से ये फिल्म जो है शिमला में शूट हुई है। करेक्ट, मतलब हाँ, नवीन की वजह से। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक ऑनेस्टी वाली फ्रेंडशिप होती है और एक डिसऑनेस्टी वाली होती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। एंड हमारी इंडस्ट्री में जो सेकंड कैटेगरी वाली फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा है। इस फिल्म में चिंतन और नवीन के बीच में बहुत ही रियल फ्रेंडशिप है, एग्री ना? दे आर वेरी रियल विद ईच अदर, तो कुछ ज़्यादा बनावटी बातें नहीं होती और उसी में मज़ा है जो मैंने एंजॉय किया। ऑफ कोर्स movie to watch. It will be like we will glued to the seat, and all the best. No success to them. Well, मैंने अभी हाल में योगेश जी से मिली। He looks a very sorted person and I think it's a good direction that he has done, and I still have to watch the film, so let me watch the film to say anything more about it. But in this summer I need this winter, and that's it in Shimla. That's what I'm talking about. And I think it's a thriller, so I have already goosebumps. So let's see how that. I wish all the very best to Fun everybody. to watch the thriller movie. Yeah, So in summers and the winter tales, that will be fun also. All the very best. All the best. everybody. Thank you. Thank you. विशेष ये है कि डॉक्टर एस के त्यागी एक विश्व यस बोली कि मैं देखना चाहता था फिल्में बनती कैसे हैं। मैं एक्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ये तो योगेश जी बताएंगे और जो आप देखेंगे आप लोग तो बताएंगे कि जो भी छोटा सा रोल मेरा है वो मैंने सही निभाया है या नहीं।
लेकिन इनके साथ रह के पूरी फिल्मिंग देख के ये पता चला कि जो हम पर्दे पे देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। वो वाकई में बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी पिक्चर को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बिना ये जान के कि उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लोगों की मेहनत लगी हुई है। ये मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कि आप किसी का अब कोरोना काल में आपने किसी का, हम लोग डॉक्टर्स ने किसी को ठीक कर दिया तो लगता है 4 गोलियां दी और वो ठीक हो गई। ये नहीं पता चलता कि कितनी रातें हमने उस मरीज़ के बारे में सोच के काटी और कितनी मेहनत करी और कैसे करी। बट इट वॉज फन, इट वॉज प्लेजर। इन सब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी इस माहौल में रहा नहीं, कभी मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ सीखा बहुत। और योगेश जी बोल रहा हूँ हेपेटोलॉजी, तो ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे कहीं मिले तो एक कैरेक्टर जैसे मुझे लगे। मैं इनसे पर्सनली इनको जानता था, तो मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा आप एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का रोल करना है। तो इनके फैमिली, ये पुलिस फैमिली से हैं, ऑल द डॉक्टर हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी पुलिस फैमिली, पुलिस बिहेवियर देखा है, तो डॉक्टर साहब मान गए। तो इस वजह से हिंदुस्तान में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खूब इस फिल्म को आगे बढ़ा रही है, वो एडवांटेज मुझे उस समय पता नहीं लगा था कि डॉक्टर साहब को लेने का ये एडवांटेज होगा कि हिंदुस्तान का हर डॉक्टर तो पिक्चर देखेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। में भी हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया था एंड इट वाज अ फन जर्नी ऑल टुगेदर, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर It was a lovely experience. I've known Mr. Verma for 5 years, first as a theatre actor, and to work with him and to see what he's created and to have the privilege of working with him as a director will be an experience I will always remember, and it was an honor to be working on this film. I'll start. Okay. Yogesh sir was like fantastic director, very smooth sail, like ऐसा नहीं कि एकदम pressure है, the story, the way he was explaining things was very fantastic. No, the writing, the script writing was spectacular. The characters all had their unique way of guiding the story. So it was more of a story, it's a journey for all of us, and again, honored to be part of this. Thank you. Thank you so much. Port Gauri and obviously Parul, so it makes it even more special. हाँ जी योगेश जी से मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव और इमोशनल आदमी है, एंड ही इज़ गिवन इट हिज बेस्ट। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म सो दैट मुझे पता चले कि असली में वो कैसे हैं, एंड देन उनसे मिलना होगा। जी हाँ, मेरी अभी इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, वेटिंग फॉर दैट। नीरज पाठक सर की है, रणदीप है, मैं हूँ, अभिमन्यु सिंह है, अमित सियाल है, उर्वशी राउटेला है। सो एक वो है, एक मंडली है, एक बगावत है, तो 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू। आप अपनी मूवी देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अरे वेरी एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, सो आई जस्ट क्विकली रन, डू दिस एंड रन। आपका किरदार बहुत अच्छा है इसमें, गौरी प्रधान का थोड़ा बचपन का किरदार है जी, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? मैंने 1-2 बार पहले भी कहा है कि बहुत ही वार्म कैरेक्टर है। जो भी स्मॉल टाउन से लड़कियाँ आती हैं हमेशा they can really relate to this character and they'll be able to see themselves in this character. So please watch the film because you're going to really connect with it. योगेश जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह के राइटर और डायरेक्टर हैं? योगेश जी बहुत ही थॉटफुल डायरेक्टर हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, and especially he's making a film on women and how they feel and their journey, so he's very sensitive as well. So it's been an amazing journey with him and I hope that this journey continues through other work. थैंक यू। Thank you. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पर्सनली आई कैन से कि जो शिमला की ब्यूटी है, आई केम टू नो कि वो सब दिखाई गई है और एब्सोल्युटली बहुत फेबुलस फिल्म बनी है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसे कि कहते हैं इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो 65 ईयर ऑफ एज के बाद उन्होंने डेब्यू किया है, सो येस ऑफ कोर्स वेरी गियर्ड अप टू सी द मूवी। तो डायरेक्टर के साथ ही साथ राइटर भी है मूवी और इतना
प्यारा स्टोरी लिखा है, क्या होता है? कहते हैं कि जब पैशन होता है ना, किसी भी काम को आप करते हैं और पैशन से करते हैं तो वो बहुत अच्छा ही होता है। तो ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर भी हैं, तो फिल्म तो बहुत अच्छी है ही है, और एक बार देखते हैं तो फिर रिव्यू करेंगे कैसे हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑनेस्टली मैं उतना एक्साइटेड हूँ जितना योगेश जी खुद हैं। You know, he's had a phenomenal journey from a technocrat, Bitch Pilani pass out, I think, if I'm not sure. Yeah, but he's someone who's built a real estate empire on his own, and then suddenly moved into motion pictures because he had a passion for it. So it takes a lot of effort, a lot of courage, a lot of commitment, a lot of passion to create what he has created. Winter Tales in Shimla is something which is as exciting as Yogesh ji's journey. So I'm looking forward. I'm sure whatever he would have created must have been a masterpiece. Thank you sir, thank you sir. Thank you.